کیا جائے اس کی پاسداری کی جائے. یا تو وہ شرطیں مانتے نا, IMF کہتے جناب ہم یہ کام نہیں کر سکتے, وہ شرطیں مان کے اس کے اوپر دستخط کر کے ان کی دھجیاں اڑا دیں. تو آج IMF کہتا تھا کہ آپ بھی تو پاکستان کی حکومت ہے, ہم آپ پہ کیسا اعتبار کریں. IMF سے ہمارا معاہدہ جو ہے وہ شرائط جو ہے آلموسٹ وہ طے ہو گئی ہیں. امید ہے اگر کوئی IMF نے کوئی اور اپنے شرط نہ لگا دی تو اب یہ معاملہ ہونے جا رہا ہے. لیکن IMF کے معاہدے کے نتیجے میں کیا راتوں رات خوشحالی آ جائے گی؟ بالکل نہیں. ہمیں مدد ملے گی, لیکن قوم کو خوشحالی اور ترقی کی طرف لے کے جانا وہ پھر یہ میری ذمہ داری ہوگی اور کولیشن کی تمام پارٹیز کی ذمہ داری ہوگی. تاریخ میں پہلی مرتبہ جینوئن ٹیکس لگایا جا رہا ہے نیٹ انکم کے اوپر. جو بڑے بڑے جو اس ملک کے جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ جو دولت سے نوازا ہے, صاحب ثروت جن کو کہتے ہیں, چین کب تک ہماری مدد کرے گا؟ وہ کہتا ہوگا یار یہ کب تک ہمارے پاس آ کے ہم سے مانگیں گے. سعودی عرب ہمیں کہتا ہوگا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں, یہ کب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے؟ ٹائم ٹیسٹڈ کوڈ, اٹس نیور ٹو لیٹ, اٹ از ڈیفیکلٹ بٹ ناٹ امپاسبل. میرا یہ ایمان ہے. تحریک انصاف کی حکومت نے IMF سے معاہدے کی دھجیاں اڑا دیں. IMF کو پاکستان پر اعتبار نہیں تھا. ہم IMF کے پاس گئے, صاف کہا دیا گیا کہ پہلے پرانی شرطیں پوری کریں. وزیر اعظم شہباز شریف نے صاف بتا دیا, کہا اب شرائط طے ہو گئی ہیں, کوئی نئی شرط نہیں لگی تو IMF سے معاہدہ ہو جائے گا, لیکن اس سے راتوں رات خوشحالی نہیں آئے گی. اپنی مالی پوزیشن ہمیں خود ٹھیک کرنی ہوگی. امیروں پر ٹیکس لگا رہے ہیں. پچھلی حکومت نے چین, متحدہ عرب امارات اور ترکی جیسے دوست ملکوں کو ناراض کیا. چین کب تک ہماری مدد کرے گا؟ سعودی عرب سوچتا ہوگا یہ کب اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے؟ تمام سارے الزام تراشی کے باوجود چین نے کہا پاکستان کے ساتھ ہیں, اب ہم یکسو ہیں. حکومت کے باقی 14 ماہ پورے کریں گے. ملک کو خوشحالی اور ترقی کی طرف لے جانا حکومت اور اتحادیوں کی ذمہ داری ہوگی. مسلسل اونچی اڑان کے بعد ڈالر کو ریورس گیئر لگ گیا. انٹر بینک میں ڈالر 4 روپے 70 پیسے سستا. کاروبار کے اختتام پر 207 روپے 23 پیسے کا ہو گیا. کل تک انٹر بینک میں ڈالر 211 روپے 93 پیسے کی ریکارڈ سطح پر تھا. برآمدات کے 22 کروڑ ڈالر موصول ہونے پر ڈالر کی قیمت نیچے آئی. اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر 3 روپے کم ہو کر 209 روپے ہو گئی. نون لیگ کی رہنما مریم نواز نے کہا ہے مہنگائی اور دیگر مسائل کا تمام قومی سیاسی جماعتوں نے مل کر مقابلہ کرنا ہے. ایک پارٹی تنہا ملک کو مسائل کی دلدل سے باہر نہیں نکال سکتی. عمرانی حکومت پاکستان کو عالمی تنہائی کا شکار کر کے گئی. دنیا سے کٹ کر زندگی نہیں گزار سکتے. عمرانی فتنہ احتجاج کے نام پر ایک بار پھر فساد کی دھمکیاں دے رہا ہے. عمرانی فتنے کے چہرے سے نقاب اتر گیا. ان کا اصلی چہرہ عوام نے دیکھ لیا ہے. اب عوام ان کے دھوکے میں مزید نہیں آنے والے. مریم نواز کی مرکزی جمعیت اہل حدیث کے سربراہ سینیٹر پروفیسر ساجد میر سے جاتی عمرہ میں ملاقات میں گفتگو. پروفیسر ساجد میر نے کہا PDM کو بحرانی حالات میں حکومت کا کوئی شوق نہیں تھا. ملک کے مفاد کے لیے عمران خان کو اقتدار کی کرسی سے اتارنا ناگزیر ہو چکا تھا. We left a very good, economy for you. You messed it up in 3 months and now fix it. ایک اور بجٹ آ رہا ہے. IMF نے انہیں کہا ہے کہ 4 سے 40 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگانے ہیں. وہ اصل بجٹ ہوگا. PTI دور میں تو لوڈ شیڈنگ نہیں تھی. سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کی اتحادی حکومت پر تنقید. سیکرٹری اطلاعات PTI فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ مہنگائی میں 30% اضافہ ہو چکا. یہ شہباز فریڈ ہے. ڈالیں بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں. انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. آج پاکستان فائنینشلی اسٹیبل ہو گیا اور ہمارا روپیہ جو ہے امریکن ڈالر کے سامنے بڑھ رہا ہے. جو مشکل وقت ہے اس سے آسانی آئے گی. مہنگائی کے کپتانوں کو بھی مہنگائی بری لگنے لگی ہے تو اچھی بات ہے. آپ نے ملک کو دیوالیہ ہونے کی نہج پہ چھوڑ دیا. شری لنکا بنا رہے تھے آپ پاکستان کو. یہ بڑی بھاشن دیتے ہیں پیٹریٹزم کے, یہ آپ نے کیا.
वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। आज पाकिस्तान माली तौर पर मुस्तहकम हो गया, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, डॉलर नीचे आ रहा है, 2-3 माह में मुश्किलात पर काबू पा लेंगे। हुकूमत गरीबों को सस्ती चीजें देगी, अमीरों से टैक्स लेगी। मिफ्ताह ने कहा कि उनकी अपनी कंपनी पर तकरीबन 20-25 करोड़ का टैक्स बढ़ जाएगा। वज़ीर आज़म के बेटे की कंपनी पर भी टैक्स लगाया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने मुआशी बदहाली का जिम्मेदार चेयरमैन PTI को करार देते हुए कहा कि इमरान खान ने मुल्क को दिवालिया होने के करीब पहुंचाया। वो पाकिस्तान को श्रीलंका बना रहे थे, जब महंगाई कर रहे थे तब गरीबों का ख्याल नहीं आया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि IMF से जिस मुआहदे की शहबाज शरीफ बात कर रहे हैं उसमें तेल 150 रुपए फी लीटर दस्तयाब था। मईशत 6% सालाना की रफ्तार से तरक्की कर रही थी। जिस IMF मुआहदे को ढाल बनाकर आवाम से गुलामी की कीमत वसूल कर रहे हैं उसमें गैस 45% सस्ती थी, डॉलर 179 रुपए का और ज़र मुबादला के ज़खायर 16.5 अरब डॉलर थे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दिनों में पेट्रोल की कीमत 84 रुपए, गैस की 45% और बिजली की कीमत 10 रुपए फी यूनिट तक बढ़ा दी गई। बजट में गैर हकीकी और फर्जी आदादो शुमार अवाम कैसे कबूल करेंगे? ये कोई क्रिकेट का मैच नहीं कि कह दिया मैं नहीं मानता। वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा का सेनेट में खिताब। कहा PTI ने इंतहाई सख्त शराइत पर IMF से मुआहिदा किया। PTI हुकूमत वाले मुआहिदा करके फिर गए थे। PTI कीमतों में इजाफे का मुआहिदा करके गई थी। मौजूदा हुकूमत IMF मुआहिदे से पीछे क्यों हटे? ये कोई बच्चों का खेल तो नहीं, जो मुआहिदा किया है उसे पूरा करना है। ये जो हालात छोड़कर गए इससे बेहतर बजट दिया। 80% बराह रास्त टैक्स लगा रहे हैं ताकि महंगाई न आए। IMF से मुआहिदा तोड़ा, बारूदी सुरंग बिछा कर गए, ये मुल्क को दिवालिया करने वाले थे, इसलिए शराइत सख्त हैं। IMF बजट के लिए PTI का शुक्रिया। शेरी रहमान का PTI पर जवाबी वार। विफाकी वजीर ने कहा कि आप कभी न्यूट्रल को दुहाई देते हैं, कभी गालियां देते हैं, अभी जेल का सिलसिला शुरू नहीं हुआ, जवाबदेही तो होगी। फरा गोगी पर बात करने पर मजबूर मत करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की NHA को मरी एक्सप्रेस वे की मरम्मत के लिए काम करने की हिदायत। कहा सड़कों पर चाय खाने बन जाते हैं, सयाहों की सहूलत के लिए जगहें मखसूस की जाएं। सड़कों के किनारे तजावुजात की भरमार हो गई थी, किसी को परवाह नहीं थी। ये था नया पाकिस्तान। हजारा मोटरवे को देखें, उसकी क्वालिटी देखें, हजारा मोटरवे बनाने वालों से रहनुमाई लें। मरी एक्सप्रेस के लिए भी हजारा मोटरवे वाली चीनी कंपनी को रखें। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि डिसइंफॉर्मेशन इस दौर का बड़ा मसला है। पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक के साथ मिलकर डिसइंफॉर्मेशन के खिलाफ इक़दाम किए हैं। डिसइंफॉर्मेशन की रोकथाम के लिए लोगों में आगाही पैदा करने की जरूरत है। डिसइंफॉर्मेशन के मसले से निपटने के लिए मौसर लाइहाए अमल बनाना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की मुतालिका कमेटी को मसले के हल के लिए किरदार अदा करना होगा। डिसइंफॉर्मेशन से आगाही के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की मदद ली जा सकती है। तहरीक इंसाफ ने हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों को लोटे का निशान अलॉट करने की तजवीज़ दे दी। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा कि एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार जमातें इंतखाबी इत्तेहाद की जानिब बढ़ रही हैं। इन जमातों को इंफरादी इंतखाबी निशानात से रोक कर मुश्तरका इंतखाबी निशान दिया जाए। हमारी राय में इस कसीरुल जमाती इत्तेहाद के लिए लोटा मौजूद तरीन इंतखाबी निशान है। FIA ने रहनुमा काफ लीग और MNA मोनिस इलाही की जायदादों कारोबार की मालूमात के लिए मुख्तलिफ इदारों को मुरासले लिख दिए। स्टेट बैंक, एक्साइज एंड टैक्सेशन और LDA के अलावा महकमा माल, कमिश्नर लाहौर और कमिश्नर गुजरात को भी मुरासले लिखे गए हैं। FIA के जराये के मुताबिक मुरासले में लिखा गया है कि मोनिस इलाही की मनकूला और गैर मनकूला जायदादों की तफसीलात फराहम की जाएं। मोनिस इलाही के बैंक अकाउंट की तफसीलात भी फराहम की जाएं। FIA मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात कर रही है। आर्टिकल 63 के मुताबिक मुनहरिफ अरकान सिर्फ 20 सीट होंगे। वोट शुमार न करने की राय खिलाफ आइन है। आइन में मुदाखलत के मुतरादिफ है। पैराग्राफ पर नजर सानी करके राय वापस ली जाए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सुप्रीम कोर्ट से इफ्तिदा। आर्टिकल 63 की तशरीह पर नजरसानी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 के तहत मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार न करने की राय दी थी।
हुकूमत जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में नजरसानी अपील वापस ले। सुप्रीम कोर्ट परवेज मुशर्रफ की सजा मुअत्तली के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर करे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन भोन का मुतालिबा। वज़ीर कानून ने अपील पर नजरसानी का मामला काबीना में उठाने की यकीन दहानी करा दी। आजम नज़ीर तारिक का कहना है कि हुकूमत परवेज मुशर्रफ को वापस लाने के लिए सहूलत फराहम करना चाहती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए मुख्तस बजट का 30% हिस्सा वापस कर दिया। अब जजों के लिए कोई चाय या रिफ्रेशमेंट नहीं होगी। तज़ीम आराइश का कोई काम गैर ज़रूरी काम नहीं किया जाएगा। गैर इस्तेमाल शुदा बजट खर्च करने के लिए मुलाजमीन को एजाज़िया नहीं दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने इससे पहले सरकारी प्लॉट लेने से इनकार करके एक काबिल तकलीद मिसाल कायम की थी। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी और वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। दियामिर भाषा डैम की हदूद में लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद शाहराह कराकरम ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। मुसाफिर और सयाह फंस गए। बाबूसर नेशनल हाईवे से बर्फ हटाने का काम जारी। वादी नीलम के बालाई इलाकों में गैर मुतवक्की बर्फबारी से खाना बदोशों को मुश्किलात का सामना। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश और मुंहजोर रेलों से हरनाई और कोहलू में राबता सड़कें मुतासर। कोहे सुलेमान रेंज के पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाई सिंध में पानी की सतह में बेहतरी आने से माहीगीरों के चेहरे खिल उठे। गुजरात में सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए दरियाई चिनाब में रेस्क्यू एंड रिलीफ की मशकें की गईं। कराची में कोरोना ने फिर पंजे गाड़ दिए। मुस्बत केसेस की शरह 21% से ज्यादा रिकॉर्ड। 24 घंटों के दौरान मजीद 138 अफराद में कोरोना की तस्दीक। सिंध में शरह 5% हो गई। अहमदाबाद में तकरीबन 9, पेशावर में 3, मीरपुर और इस्लामाबाद में शरह लगभग 2.5% रही। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2% से ऊपर चली गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद एक मरीज इंतकाल कर गया। विफाकी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज कोरोना के 268 नए मरीज सामने आए। शरह 2.14% रही। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के इल्जामात मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन पंजाब ने सबूत मांग लिए। कहा कि पंजाब असम्बली के हल्का PP 217 में स्कूटनी के रोज शाह महमूद कुरैशी और उनके बुकला ने रिटर्निंग अफसर पर दबाव डालने की कोशिश की। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर के मुताबिक मुल्तान में बैनर और पेना फ्लैक्स उतारने पर शाह महमूद के सेक्रेटरी ने धमकियां दी। रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद भेज दी। शाह महमूद कुरैशी ने इल्जाम लगाया था कि ज़िमनी इंतखाबात में 20 हल्कों के ज़िमनी इंतखाबात में डेप्यूटी कमिश्नर्स और DPOs को कहा गया है कि उनका मुस्तकबिल इंतखाबी नताइज से जुड़ा है। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारियों से गाफिल रहा तो जमहूरियत दाव पर लग जाएगी। एक दहाई कबल तश्कील दिए गए कमीशन ने जबरी गुमशुदगी के खात्मे के लिए वफाकी हुकूमत को तजावीज़ क्यों न दी। कमीशन की ड्यूटी है कि गुमशुदा अफराद के अहल खाना तक खुद पहुंचे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लापता अफराद बाजियाबी कमीशन पर बरहमी का इजहार। 8 साल से लापता जाहिद अमीन और 1 साल से लापता सादिक अमीन की बाजियाबी के केस की समाअत दरख्वास्त गुजारों की जानिब से एडवोकेट ईमान मसारी अदालत में पेश। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कमीशन रजिस्ट्रार से पूछा कि JIT ने जब कह दिया कि ये जबरी गुमशुदगी है तो आपने प्रोडक्शन ऑर्डर किसे जारी किए। प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल न करने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए क्यों न लिखा। क्या कमीशन सिर्फ रस्मी कार्रवाई के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करता है। बाद नजर में कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा। विफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारिक की ज़ेर सदारत लापता अफराद से मुतालिक काबीना की ज़ेली कमेटी का इजलास। वजारत कानून और वजारत दाखिला के आला अफसरान की शिरकत। विफाकी वज़ीर का कमेटी इजलास हर हफ्ते बुलाने और सबको सुनने का फैसला। कहा लापता अफराद का मामला उनके दिल के करीब है। कमेटी इक़दामात के अमली नताइज सामने आएंगे। पब्लिक अकाउंट कमेटी ने वापदा मुलाजमीन को मुफ्त बिजली की फराहमी खत्म करके अलाउंस देने की सिफारिश कर दी। चेयरमैन PAC नूर आलम खान ने कहा कि 10-15 हज़ार तनख्वाह वाले से बिल लिया जा रहा है। वापदा मुलाजमीन को बिजली मुफ्त है। क्या मुफ्त बिजली खत्म करने के लिए वजारत ने कोई सिफारिश की है। सेक्रेटरी पावर ने बताया कि 80 लाख सारिफीन हुकूमत से बिजली पर सब्सिडी ले रहे हैं। एक साल में पावर सिस्टम ने 1100 अरब रुपए का नुकसान किया। अगले साल नुकसान 2 खरब रुपए का होगा।
कराची वालों के लिए बिजली 11 रुपए 34 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त के इलेक्ट्रिक ने मई की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त नेपरा को दे दी। नेपरा दरख्वास्त की समाअत 4 जुलाई को करेगा। मंजूरी की सूरत में कराची के अवाम पर 22 अरब 65 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। लाहौर एयरपोर्ट पर कौमी एयरलाइन के तैयारे से परिंदा टकरा गया, एक इंजन नाकारा हो गया, तैयारा परवाज के काबिल नहीं रहा। कप्तान ने जहाज को बहिफाजत एयरपोर्ट पर उतार लिया। पीआईए हुकाम के मुताबिक शारजा से आने वाली परवाज में 168 मुसाफिर सवार थे। 2 हफ्ते के दौरान 4 से ज्यादा तैयारों से परिंदे टकरा चुके हैं। बिलियन ट्री प्रोजेक्ट की तहकीकात के लिए नैब की हरकत में आने पर खैबर पख्तूनख्वा में जंगलात में आग लगने के वाकयात बढ़ने का इंकशाफ। नैब ने अप्रैल में हजारा, मालाकंड और मर्दान के कमिश्नर्स को तस्दीक की कमेटियां बनाने की हिदायत की। कमेटी को बिलियन ट्री सुनामी से फायदा उठाने वालों से तस्दीक करना थी। नैब जराये का कहना है कि खतूत के बाद जंगलात में आग लगने के वाकयात में इजाफा हुआ। आग से बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट का हिस्सा भी मुतासर हुआ। खाना पकाने का तेल इतना महंगा हो गया कि चोरी होने लगा। जहलम में एक शख्स दुकान के बाहर से कुकिंग ऑयल का कार्टन उठाकर चलता बना। सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। दुकानदार का कहना है कि आए रोज दुकान से मुतादिद कुकिंग ऑयल चोरी हो चुके हैं। अप्रैल में कुकिंग ऑयल की कीमत 484 रुपए थी, जो कि अब 530 रुपए का हो गया है, जिसके मुताबिक गुज़िश्ता 2 माह में कुकिंग ऑयल की कीमत में तकरीबन 46 रुपए का इजाफा हुआ। खून सफेद नहीं हुआ, रिश्तों का खून हो गया। नए कपड़े ना बना सकना जुर्म बन गया। गुजरावाला में पत्थर दिल बेटे ने मां को डंडे मारकर कत्ल कर दिया। बहन बचाने आई तो उसे भी डंडे मारकर जख्मी कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने जुर्म का एतराफ कर लिया। पुलिस का कहना है कि मकतूला के शौहर का इंतकाल हो चुका है। मेहनत मजदूरी करके घर चलाती थी। मुलजिम काम काज के बजाय मां से पैसे मांगता रहता था। लाहौर में ई टिकट चालान फिर से किए जाएंगे। सिंगल बेंच का ई टिकट चालान गैर कानूनी करार देने का फैसला तहुक्म सानी मुअत्तल। अदालत ने कहा, कानून में तरमीम के बगैर ई चालान कैसे कर सकते हैं। सिंगल बेंच ने डायरेक्शन दी कि कानून में तरमीम करें। सरकारी वकील ने कहा, कई ममालिक में ई टिकटिंग चालान का निज़ाम है। ई टिकटिंग चालान से ट्रैफिक निज़ाम में बेहतरी आती है। सिंध हाई कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक सियासी जमातों की दरखास्तों पर समाअत। इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिपोर्ट पेश। एमकेएम के वकील फरूक नसीम की रिपोर्ट की नकल फराहम करने की इस्तदा। कहा, हल्का बंदियों में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। हमारे इलाकों में 82,000 वोट से जायद की यूसी बनाई गई है। इससे मुख्तलिफ तबकात की नुमाइंदगी मुतासर होती है। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने रिमार्क्स दिए कि अब तो हुकूमत आपकी हिमायत कर रही है। वकील एमकेएम ने कहा कि जी, हुकूमत हमारी बात मान रही है, उसे काम करने का मौका दिया जाए। रहनुमा पीटीआई इमरान इस्माइल का सिंध पुलिस पर बल्दियाती उम्मीदवारों के अगवा का इल्जाम। साबिक गवर्नर कहते हैं, बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई का मुकाबला पीपी से ही नहीं, पुलिस और इलेक्शन कमीशन से भी है। इलेक्शन कमीशन पीटीआई वालों के कागजात मुस्तरद कर रहा है। अली जैदी ने कहा, कहीं बल्दियाती इंतखाबात जानलेवा मश्क न बन जाएं। मुखालिफ उम्मीदवारों पर जाली मुकदमे, तजवीज़ कुनंदा और हिमायत करने वालों पर तशद्दुद किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है, बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी नहीं हुए, अवाम अफवाहों पर कान न धरें। मुखालिफिन को 80% इलाकों में उम्मीदवार नहीं मिले। अवाम में बदगुमानी पैदा करने के लिए अफवाहें फैला रहे हैं। इमरान खान हर किसी से लड़ाई करके मुल्क में एनार्की फैलाना चाहते हैं। इमरान खान अगर इतने सच्चे हैं तो कौम को सच बताएं कि किस तरह RTS बैठ गया। अवाम का मैंडेट चोरी करके इमरान खान को मसनूई तरीके से वज़ीर आज़म बनाया गया और 3.5 साल तक ऑर्डिनेंस के जरिए इनकी हुकूमत चली। पाकिस्तान मानसून की बारिशों के लिए तैयार है। गैर मामूली बारिश, मुमकिन सैलाब की तबाहकारियां और हंगामी सूरत हाल से बचना कैसे मुमकिन होगा। हुकूमत ने क्या इक़दाम किए हैं, कौमी और सूबाई महकमों की क्या तैयारी है। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में डायरेक्टर महकमा मौसमियात ज़हीर बाबर ने कहा,
मानसून सीजन जुलाई से 15 अगस्त तक होगा। इस दौरान मामूल की बारिशें होंगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब बोले, कल 38 से 40 मिलीमीटर बारिश हुई। MS जिन्ना रोड और टाइलस रोड को क्लियर कर दिया गया था। जहांगीर रोड पर नाले की सफाई का काम जारी है। MD वासा गफरान अहमद ने तजवीज़ दी कि बारिश का पानी जखीरा करने के लिए टैंक बनाए जाएं। बारिश का पानी जमा करने के लिए 11 वाटर टैंक बनाने हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोहिस्तान, मानसेहरा, बालाकोट, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। दुआ ज़हरा के सुप्रीम कोर्ट के दायरे कार में नहीं आता। मेडिकल बोर्ड की तश्कील के लिए मुनासिब फोरम से रुजू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के रिमार्क। वालिद मेहदी कासमी ने दुआ ज़हरा को शेल्टर होम भिजवाने की दरख्वास्त वापस ले ली। अदालत ने केस निपटा दिया। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर से के इलेक्ट्रिक के कुवैती और सऊदी सरमायाकारों की मुलाकात। वफाकी वजीर ने के इलेक्ट्रिक के मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, मुल्क की बेहतरी के लिए तवील मुद्दती पॉलिसी पर तवज्जो दे रहे हैं। के इलेक्ट्रिक अपने सारिफीन को बेहतरीन सहूलियात मुहैया करे। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खुराक ने कहा है कि सूबे में 20 किलो आटा 980 और 10 किलो 490 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। आवाम को सब्सिडाइज आटे की फराहमी पूरा साल जारी रहेगी। 1 जुलाई से 26 अरब रुपए की लागत से फूड कार्ड स्कीम शुरू कर रहे हैं। सेनेटर अजहर अब्बानी ने कहा है कि पार्लियामान को रबर स्टैम्प की तरह इस्तेमाल किया जाता है। TTP से मुज़ाकरात के बाद मुआहिदा पार्लियामेंट में आया तो उसमें कोई तरमीम नहीं हो सकेगी। TTP से मुज़ाकरात के हवाले से पार्लियामेंट का इन कैमरा मुश्तरका इजलास बुलाया जाए। अली वजीर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए लिखा, हैरत है TTP से बात कर सकते हैं लेकिन मेंबरान को ऐवान में नहीं ला सकते। वजीर कानून आजम नजीर चारण ने कहा, TTP से मुज़ाकरात पार्लियामेंट की मसावत से होंगे, पार्लियामेंट उसमें शरीक होगी। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, बताया गया है कि TTP से मुज़ाकरात मुकम्मल होने पर पार्लियामेंट के सामने रख देंगे। क्या पार्लियामेंट अंगूठा छाप है, रबर स्टैंप है? सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, TTP से मुज़ाकरात 2.5 माह में शुरू नहीं हुए, गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में शुरू हुए। हमें मालूम नहीं मुज़ाकरात कैसे शुरू हुए, किसके दरमियान हो रहे हैं। अब जाकर मामला खुले हैं। अफगानिस्तान में तबाहकुन ज़लज़ले ने हजारों जानें और लाखों लोगों के सिरों से साया छीन लिया। पक्तिका में सबसे ज्यादा नुकसान, कई गांव मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। पूरे खानदान उजड़ गए। एक खानदान की 3 साला बच्ची ही तनहा जिंदा बची। सड़कें बंद, मोबाइल फोन टावर नाकारा होने से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान अफगानिस्तान पहुंचा दिया गया। 8 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी सामान में रिहायशी खैमे, तरपाल, कंबल और जरूरी अद्वियात शामिल। जापान और कोरिया का भी इमदाद भेजने का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं, अफगानिस्तान में मुकम्मल सरगर्म है। तिब्बी टीम, खुराक और आर्जी पनाहगाहें मुतासरा इलाकों की जानिब भिजवाई जा चुकी हैं। भारत में $4.25 अरब से ज्यादा का अब तक का सबसे बड़ा मुबैना बैंक फ्रॉड। 17 बैंकों को $4.40 अरब कर्ज लेकर चूना लगाया गया। तहकीकाती इदारे CBI ने फ्रॉड में मुलविस कंपनी का नाम जाहिर न किया। कहा, कंपनी और उसके एग्जीक्यूटिव पर बैंकों के कंसोर्शियम को 346 अरब रुपए का धोखा देने का शुबा है। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए CBI की मुंबई में 12 मकामात पर छापे। भारत में अब तक का सबसे बड़ा फ्रॉड केस ABG शिपयार्ड के खिलाफ $3 अरब का है। आप भाग क्यों रहे हैं? ऐसा क्या किया जो आप भाग रहे हैं? These MLAs running and going inside the airport. We are at Surat Airport. Eknath Shinde went inside. Now you can see other MLAs are also going along with Eknath Shinde. They are being taken by Gujarat Police. ऐसा क्या कर रहे हैं? ऐसा क्या कर रहे हैं? The MLAs are quiet. They are not speaking. 150 पुलिस ने उठा के मेरे को हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ ऐसा एक नाटक रचा है कि मेरे को अटैक आ गया। मेरे को कोई प्रकार का अटैक आया नहीं।
भारतीय हिंदुत्व जमात शिवसेना के सरबराह और महाराष्ट्र के वजीर आला उदय ठाकरे के खिलाफ पार्टी में बगावत। पार्टी रहनुमा एकनाथ शिंदे ने 40 अरकान की हिमायत का दावा कर दिया। बाकी अरकान बीजेपी रियासत आसाम के शहर गुवाहाटी के होटल मुंतकिल। चार्टर तैयारों में मुंतकली से पहले पुलिस एमएलए को मीडिया से बचाते और दौड़ाते हुए एयरपोर्ट पर ले गई। बाकी अरकान के खिलाफ होटल के बाहर मुजाहिरा। पुलिस ने कई अफराद गिरफ्तार कर लिए। एक एमएलए देशमुख गुजरात से वापस मुंबई भाग आए। बागियों का साथ देने के लिए अगवा का इल्जाम। और उदय ठाकरे वजीर आला हाउस से जाती घर मुंतकिल हो गए। कहा मुस्ताफी होने और पार्टी चीफ का ओहदा छोड़ने को तैयार हैं। बरतानिया में तनख्वाहों में इजाफे और बदतरीकियों के खिलाफ 40,000 रेलवे वर्कर्स की आज भी हड़ताल। दारकूमत लंदन में अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन नेटवर्क भी जुज़वी तौर पर बंद। रेलवे यूनियन का बरतानिया की अहम रेलवे स्टेशन के सामने एहतजाज। वर्कर्स यूनियन ने हड़ताल का दायरा असातिज़ा, तिब्बी अमले, वकला और दीगर शोबों तक फैलने का दावा कर दिया। बरतानिया में पेट्रोलियम मसनूआत और अशिया खुरानों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अफराती ज़र की शरह 9% तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तानी ब्रिटिश बॉक्सर आमिर खान को लूटने के इल्जाम में 3 अफराद पर फर्द जुर्म आए। अप्रैल में आमिर खान से 72,000 पाउंड की घड़ी छीनी गई थी। गिरफ्तार अहमद बाना, नूरुल अमीन, डैन कैम्बल को टेम्स मैजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा। लंदन की सीवरेज लाइन से पोलियो वायरस मिलने का इंकशाफ। हुक्काम के मुताबिक पोलियो वायरस शिमाली लंदन से ताल्लुक रखने वाले कुछ अफराद में फैल गया है। 1950 में बरतानिया में पोलियो आम था। 2003 में उसका खात्मा कर दिया गया था। इसराइल में 1200 साल से जायद कदीम मस्जिद के आसार दरियाफ्त। जनूबी शहर राहत में नई आबादी की तमीर के दौरान आसार दरियाफ्त किए गए। ये खिता मुसलमानों ने 7वीं सदी के इब्तिदाई निस्फ में फतह किया था। कराची में होने वाली इंटरनेशनल टेप बॉल लीग में एसएमएस जिमखाना ने जीएफएस निकानी वॉरियर्स को 6 विकेट से हरा दिया। कोरंगी किंग्स ने मार्कोर फाइटर्स के खिलाफ 10 विकेटों से कामयाबी हासिल की। लीग के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। पाकिस्तान टीम का कैंप शुरू हुआ नहीं। कप्तान बाबर आजम नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग में मसरूफ। इनफरादी ट्रेनिंग के लिए ओपनर इमामुल हक भी उनके हमरा होते हैं। दौरे श्रीलंका के लिए ट्रेनिंग का आगाज